once we go through the overview, then we will discuss the entire chapter. Okay, so if we get done with this chapter today, then we will start with the next chapter, features of the Indian Constitution. Okay, so after this, the next chapter will start, if we are able to finish it today itself. Okay, now in the yesterday in the previous class, very good evening, Mayur. In the previous class, we discussed all the features of the, not features, but acts which were passed by the British government in India, from Regulating Act to the last act was Indian Independence Act 1947. So we have done with those acts. If you get any question on those acts, you are able to answer. Now just go through M. Lakshmikant. If you have M. Lakshmikant book, then you can go with that. Okay. And NCRT, you can start with NCRT as well. Those who are preparing for UPSC, they can also read NCRTs for Indian polity. In NCRTs, you will get to learn the more theoretical chapters related to polity. Okay. Now we will discuss the second chapter, making of the Constitution. Second chapter of the Indian polity we are going to discuss today. So डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बताया था आपको इसके बारे में। संविधान समिति की जो डिमांड थी, वो डिमांड कब स्टार्ट हुई थी? ऑफिशियल डिमांड स्टार्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935, बट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was first given by the communist movement pioneer whose name was M.N. Roy, Manvendranath Roy. He gave the idea of constituent assembly, and then official demand of the same was made by the Indian National Congress to the Britishers. Okay, but what Britishers said, first you support us in the second World War, then we will look after it. They were not able to give permission for the Constituent Assembly. This Constituent Assembly, the main purpose of the Constituent Assembly was to write the Indian Constitution for free India, to frame the Constitution for free India from the Britishers. It was the main purpose of the Assembly. Assembly का यही main purpose था. उसके बाद in 1938 नेहरू ने भी ये बोला था कि INC के बिहाफ पे उन्होंने बोला कि ये जो असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा फ्री इंडिया के लिए, दैट विल बी नॉन इंटरफियरेंस बाय एनीवन, यानी कि उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगा बाहर का, ठीक है, यानी कोई ब्रिटिश उसमें नहीं आएगा. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, उसमें पूरे इंडियन रहेंगे, वो भी अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, ठीक है. Then we discuss about the Stafford Cripps mission and all this. We have all discussed about this. ऑगस्ट ऑफर मैंने इसके बारे में आपको बताया था. 1940 में ऑगस्ट ऑफर की डिमांड की गई थी, ठीक है, सॉरी ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटिशों ने अप्रूव किया था कि हम आपको असेंबली बनाने देंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है. और उसी के साथ साथ उन्होंने 1942 में क्या कर दिया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेज दिया और बोला कि आप मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ठीक है. तो member of the cabinet came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an Indian independent constitution. किसके लिए इन्होंने भेजा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को? एक प्रपोजल लेके आए थे इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रपोजल था, ठीक है. और ब्रिटिश लोगों ने बोला था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वी विल गिव यू द फ्रीडम, ओके, ऐसे उन्होंने बोला था, और हम आपको असेंबली की भी परमिशन दे देंगे. सो क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट किया गया था. मुस्लिम लीग ने उस पर बहिष्कार कर दिया, बाइकआउट कर दिया था. बॉयकॉट क्यों किया था? बिकॉज मुस्लिम लीग को 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए थी, वन फॉर इंडिया एंड वन फॉर दी पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि जो नेशन वो क्रिएट करेंगे उनके लिए. सो विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज, राइट. सो फाइनली ये कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया, और फाइनली जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने ही फाइनल ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि असेंबली का तैयार कर दिया. तो इन्होंने पहले तो शुरू में रिजेक्ट ही किया था, इन्होंने भी सेम क्रिप्स जैसा इन्होंने रिजेक्ट किया था कि भाई हम 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बनाएंगे, ठीक है. लेकिन बाद में हुआ ऐसा, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था मुस्लिम लीग के साथ, और ये जो मिशन आया था दूसरा कैबिनेट मिशन सेकेंड, 30 सदस्य हम उसको मेंबर बोलते हैं, तो उसमें बाद में फाइनली वो भी मान गए, उन्होंने मुस्लिम लीग की बात मान ली और उन्होंने बोला कि ठीक है 2 कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, एक इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है. चलो आगे जाते हैं.
देन हमने ये डिस्कस किया था इलेक्शन वगैरह, 389 मेंबर्स थे टोटल असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और इनके ऊपर इलेक्शन होगा, ठीक है। और इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। जो गवर्नर्स की जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे उस टाइम पे, वो वोटिंग करेंगे और वही इन मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे असेंबली में, ठीक है। तो 389 टोटल क्या थे यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। उसमें मैंने आपको डिवीजन बताया था, 296 वर फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वर द रिजर्व सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स हम किसको बोलते हैं? जो राजा महाराजाओं का जो उस टाइम पे जो एरिया था, ठीक है, जो वही रूल करते थे वहाँ ब्रिटिश नहीं करते थे, यानी कि वो ब्रिटिश के अंडर ही करते थे, लेकिन ब्रिटिश वहाँ डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। डायरेक्ट रूल वहाँ पे वो राजा करता था उनके एरिया। मानो वहाँ पे उस टाइम पे जूनागढ़, उस टाइम पे कश्मीर, जहाँ पे राजा हरि सिंह का राज था, तो जूनागढ़ पे, उसके बाद हैदराबाद, ये प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम की, सातारा, ठीक है, और भी बहुत सारी थी। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसके लिए 93 सीट्स रिजर्व थे 389 में से। सो ये 296 जो सीट्स थे, इनके ऊपर इलेक्शन होता था, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्शन हुआ, इसके ऊपर नहीं, ये रिजर्व थी। रिजर्व मीन्स व्हाट? ये नॉमिनेटेड थे। तो ये राजा भेजेंगे अपने प्रोविंस से उसको कहाँ पे? असेंबली में, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा आपको और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 296 में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला, 296 में से जो 292 थे और ये 4 ऐसे डिवाइड कर दिए इन्होंने, ठीक है। ये जो 4 थे ये कमिश्नर्स प्रोविंस के लिए थे, गवर्नर्स प्रोविंस जिसको हम बोलते हैं, सो नॉट गवर्नर, कमिश्नर्स प्रोविंस। और ये जो थे 292 ये कमिश्नर्स, ये गवर्नर्स प्रोविंस के लिए थे, गवर्नर प्रोविंस, कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, सीपी एंड जीपी, ये याद रखिए आप। और ये 11 प्रोविंस थे उस टाइम पे जहाँ पे ब्रिटिश राज करते थे, उनका पूरा कंट्रोल था वहाँ पे। So each province and princely state जो था, group of states in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population. तो जो भी बड़ा अगर मानो रीजन होगा या फिर छोटा रीजन होगा, उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही जो मेंबर है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको कहा था 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे एक मेंबर था, 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन एवरी मिलियन पॉपुलेशन। उसके साथ सीट्स अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग दी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। तो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में उन्होंने सीट्स डिवाइड कर दी थी, एक मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में मुस्लिम और सिख छोड़ के ऑल, उसमें फिर पारसी, हिंदू वगैरह, ठीक है, जैन सब उसमें आते थे। तो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड कर दिया। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस? सर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो थे, जहाँ पे ब्रिटिशों के डायरेक्टली रूल नहीं था, मीन्स आज हम उसको बोल सकते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, जैसे अंडमान निकोबार हो गए, या फिर उस टाइम पे जैसे लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, वैसे उस टाइम पे छोटे छोटे जो रीजन थे उसको वो कमिश्नर प्रोविंस बोलते थे। बड़े बड़े जो प्रोविंसेस थे वो इंडियन, यानी कि जो गवर्नर्स थे ब्रिटिशर्स के, तो वो गवर्नर्स के हाथ में थे। और छोटे प्रोविंस मीन्स ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। आज हम जैसे कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं कहाँ पे? लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में। उस तरह उस टाइम पे तो इंडिया 500, याद रख, जस्ट कीप इन माइंड, 552 पार्ट्स में इंडिया डिवाइड था, ठीक है, 552, ठीक है, इतने पार्ट्स थे इंडिया के, 552। और उसमें से सिर्फ 4 ही प्रोविंसेस थे जो कमिश्नर्स के लिए उन्होंने रिजर्व किए थे। बाकी 548 तो वो पूरा कंट्रोल किस पे था यार? ये 548 जो थे वो 11 प्रोविंसेस में डिवाइड थे, ठीक है। तो छोटे प्रोविंसेस को वो कमिश्नर्स प्रोविंस बोलते थे, जहाँ पे कमिश्नर्स के लिए वो रिजर्व 4 सीट्स निकाले गए थे। सो ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलोकेटेड सीट्स, प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, मिलियन पॉपुलेशन, 1 सीट के लिए। देन 4 नंबर का इसका मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ईच कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी का जो प्रतिनिधि था, वर टू बी इलेक्टेड बाय numbers of that community in the provincial legislative assembly. अब लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी गवर्नर की, उसमें उस कम्युनिटी के मानो जितने मेंबर होंगे उन मेंबर्स के द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा। एंड वोटिंग जो थी, वोटिंग कैसे थी? बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हर एक वोट ट्रांसफरेबल रहेगा, मीन चॉइस वोट था उसको, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। सो
रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आज हम बोलते हैं राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मानो 4 कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया, ठीक है, और 4 कैंडिडेट्स में से जो और राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा और राज्यसभा और जो राज्यों की जितनी भी विधानसभा है वो सारी उसमें इन्वॉल्व रहती है। विधान परिषद नहीं, विधानसभा होंगे, तो उनका जो वोटिंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है। सो उनको भी चॉइस वोटिंग होता है मेंबर्स को। तो 4 मेंबर्स खड़े हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए, कॉन्टेस्टेंट, तो उसमें से वो जिनको पहला प्रेफरेंस देंगे उस अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी वोटिंग काउंट की जाएगी। वैसे उस टाइम पे भी था सिमिलर। और इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि आप एक चीज याद रखिए, उस टाइम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आज की हमारी पार्लियामेंट, उस टाइम पे वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी। ठीक है, ऑलरेडी वाइसरॉय की तो काउंसिल थी, और ये जो सीए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी। उस टाइम पे उन मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था। आज हम कैसे करते? आज इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, और हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसमें। सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मैंने आपको कल ही बोला था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, 93 सीट जो रिजर्व उनके लिए निकाली गई थी, उनको कौन भेजेगा असेंबली में? डायरेक्टली कौन भेजेगा? प्रिंसली स्टेट्स, वो राजा भेजेगा वो रीजन का। ठीक है, उसके साथ इट इज दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड। तो मैंने कल आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था सीए, ये पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। सो यानी कि 93 उसमें नॉमिनेटेड लोग थे, डायरेक्टली अपॉइंटेड, और जो पार्टली इलेक्टेड यानी कि बाकी लोग इलेक्शन के थ्रू जाएंगे। सो मोreover the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, who themselves were elected on a limited franchise। इलेक्शन जो थे असेंबली में 296 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कब हुए थे? जुलाई अगस्त में हुए थे 1946 में, और उसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीत ली, मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती, और जो जिसको हम बिन विरोधी बोलते हैं, बिन विरोधी यानी अदर्स बोलते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट्स, उन्होंने जीते 15 सीट्स। तो 93 सीट जो थे, ये मैंने आपको कहा था कल ही, ये तो भरी नहीं गई थी असेंबली में। क्यों? इनको एक डर था कि यार अगर हम असेंबली ज्वाइन करेंगे हमारा इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा राजा महाराजा को। ठीक है, कोई राजा को राजा नहीं बोलेगा, महाराज नहीं बोलेगा, सूबेदार कोई किसी को नहीं बोलेगा, किंग हम, यानी कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं असेंबली ज्वाइन करके। इसलिए इन्होंने 93 सीट्स को रिजर्व कर दिया, यानी कि बोल दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेंगे असेंबली में। यार कल तो फिर आप असेंबली आज बना लोगे, कल तो फिर प्राइम मिनिस्टर आएगा, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री आएगा, सीएम आएगा, तो फिर हमारा क्या रहेगा इंपॉर्टेंस? ठीक है, तो हमारे किले विले, हमारे जो इतने बड़े महल है, वो किस काम की फिर? उसमें मुख्यमंत्री आगे रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं ना कहीं इनको एक डर था। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो इलेक्शन जो हुआ था उसमें सारे कैटेगरीज के लोग थे, सारे जाति धर्म के लोग थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, एससी एसटी, सब थे, वुमेन थी, हर एक कैटेगरी और हर एक धर्म का जो पर्सन था, इंसान, वो असेंबली में था। यानी कि असेंबली ऐसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं थी, सारे ऑल कैटेगरीज ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल ग्रुप्स, ऑल, उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव था। सो असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। असेंबली में सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी, ये नहीं थे उसमें, और जिना भी नहीं थे, जिना का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सर हम, हाँ बोलिए। सर प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली कब फॉर्म हुई थी? प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली जब बंगाल का कंट्रोल लिया था ब्रिटिशों ने, ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर प्रोविंसेस कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे बंगाल उन्होंने सेंट्रलाइज किया और बाकी उन्होंने फिर प्रोविंसेस कर दिया, जैसे बॉम्बे, मद्रास, ये उन्होंने प्रोविंसेस कर दिए थे उसके बाद 1773 के बाद। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस उन्होंने फॉर्म किए थे वन बाय वन। जैसे जैसे उन्होंने इंडिया जीता वैसे वैसे उन्होंने प्रोविंसेस बनाना स्टार्ट कर दिया था। और 1858 के आसपास, जब ये 1857 का सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने 11 प्रोविंसेस इंडिया में पूरी तैयार कर दी थी। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो हम यहाँ पे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हम यहाँ पे देख लें। और आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि उन्होंने प्रोविंसेस कब फॉर्म किए थे, बिकॉज हर एक प्रोविंसेस अलग अलग टाइम पे फॉर्म किया गया था। जैसे उन्होंने वॉर जीता, युद्ध जीता, वो एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, बस उसमें अपना उन्होंने पोजीशन इंडिपेंडेंट कर दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये हमारा एरिया, ठीक है, आज से ये हमारा।
यानी हम यहाँ पे रूल करेंगे, टैक्स वसूलेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई उसका डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। अभी सब कुछ हो गया, इलेक्शंस हो गए, एवरीथिंग डन। नाउ 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मीटिंग फर्स्ट याद रखना कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया मीटिंग को। क्यों? उन्होंने बोला कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कम है और हमें सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए, ऐसा मुस्लिम लीग ने बोल दिया। मीटिंग उसके बाद जो मीटिंग में टोटल मेंबर्स थे, नाउ 208 तो कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग के थे। तो यहाँ से मुस्लिम लीग तो क्या हो गया, एब्सटेंड हो गया, एब्सटेंशन कर दिया इन्होंने, मीन्स बॉयकॉट कर दिया। तो 211 लोगों ने ही मीटिंग को क्या किया था, ज्वाइन किया था। सो डॉक्टर, उसमें कुछ इंडिपेंडेंट के 15 मेंबर्स भी थे, उसमें से कुछ आए होंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के, तो इन्होंने इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट असेंबली का इलेक्ट किया गया था, ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये सिर्फ टेम्पररी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे सीए मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान समिति के। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और जो एस.सी. मुखर्जी भी बने थे। उसके बाद वीटी कृष्णमाचारी, इनको वाइस प्रेसिडेंट असेंबली के बनाए गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एस.सी. मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी ये बने थे वाइस प्रेसिडेंट्स। दूसरे शब्द में बताना चाहूँ तो असेंबली हैड टू वाइस प्रेसिडेंट्स, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। जैसे आज हम बोलते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आज, और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही बने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब क्या है, ये लाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने असेंबली में मूव किया था, असेंबली में संविधान समिति में। कब इन्होंने मूव किया था इसको, 13 दिसंबर 1946, ठीक है। एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली, और इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल, ठीक है, और एक फिलोसॉफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। मीन्स अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर आपको पूछा गया कब इसको इस्टेब्लिश, यानी कि कब इसको प्रेजेंट किया गया था असेंबली में, डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946। किसने किया था, नेहरू जी ने किया था, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर था, संविधान का स्ट्रक्चर रचना, उसकी फिलोसॉफी और उसका फंडामेंटल्स, उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व थी, ठीक है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा मैंने आपको आगे दिया है रेजोल्यूशन। देखिए रेजोल्यूशन में कितने पॉइंट थे टोटल। फर्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट थे टोटल। यहाँ पे पहला पॉइंट, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्स्ट and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw for a future governance a constitution, ठीक है। तो अभी इंडियन जो गवर्नमेंट है, यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी ये पूरा क्या है, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया अभी क्या है, पूरा इंडिपेंडेंट बन चुका है। तो इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। वेयर इन सेकेंड था, द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, जिस टेरिटरी को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, वो अब क्या होगा, इंडियन स्टेट्स वो बन जाएंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आर outside India and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all। जो स्टेट इंडिया के बाहर थे उन्होंने इंडिया ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और जो इंडिया में थे वो भी सब इंडिया का पार्ट्स बन गए। ऐसे सारी टेरिटरी, इनको बोला गया यूनियन ऑफ देम। एक सब पूरा यूनियन उन्होंने फॉर्म किया। फेडरेशन है, यूनियन बोल रहा हूँ मैं, फेडरेशन अलग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा फेडरेशन। उसके बाद यूनियन का मतलब होता है कि अगर एक बार यूनियन बन ली तो वो सेपरेट नहीं हो सकता इंडिया से, वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा, तीसरा यहाँ पे है, वेयर इन द स्टेट टेरिटरीज, जो टेरिटरीज है इंडिया की, वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर्स एज मे बी डिटरमाइंड by the Constituent Assembly thereafter according to the law of Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom। तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जितने भी टेरिटरीज है, ठीक है, तो जो शैल पजेस एंड रिटेन स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स, तो वो सारी चीज जो है वो इंडिया की रहेगी और उनको एक ऑटोनॉमस स्टेटस जो है वो उनका वैसा दिया जाएगा जैसे पहले था ब्रिटिशों के टाइम पे, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आई थी, कोई बताएगा मुझे।
कल के लेक्चर में बताया था मैंने आपको। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई प्रोविंसेस को, यानी कि उनका डायरकी जो है वो निकाल लिया था और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दी गई थी। डायरकी यानी ड्यूअल गवर्नमेंट। ये बताएगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई थी प्रोविंसेस को? बताइए। 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये डायरकी कब कौन से एक्ट ने दी थी? प्रोविंस में डायरकी दी थी 1999 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके अंडर मिली थी और इसको हटा दिया 1935 के एक्ट ने और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी। मीन्स अभी उनको अपने कानून बनाने की ऑटोनॉमी रहेगी। उनका जो भी लेजिस्लेचर जो उनकी पावर थी जो छीनी गई थी वो उनको रिस्टोर कर दी गई थी। सो एक्सरसाइज ऑल पावर्स, लेजिस्लेचर पावर मीन्स कानून बनाने की पावर, अधिकार, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली। उसके बाद 8 नंबर की चीज, 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो नेहरू जी ने बताया वो था वेर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी जो थी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। जो भी पावर मिलेगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो सारी पावर कहाँ से आएगी? लोगों से आएगी। मीन्स डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाएगी। पीपल विल बी द सोर्स ऑफ पावर, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। पीपल ही सोर्स ऑफ पावर है। सो वेयर इन शैल बी, यानी कि लोग डिसाइड करेंगे किसको पावर में रखना है, किसको हटाना है। ब्रिटिश टाइम पे ऐसा था क्या? नहीं था, पूरी हुकुमशाही थी। वेयर इन शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इंडिया के सारे लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय कैसा रहेगा? सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। इक्वलिटी मिलेगी सबको, इक्वलिटी सारी चीजों की इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, लॉ के समान भी इक्वलिटी रहेगी। मीन्स एवरीवन विल बी इक्वल टू लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये अमीर है तो ये कानून से बढ़कर है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। जब मैं आपको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा उस टाइम को आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, बिकॉज प्रियम्बल में आधी चीजें जो है वो नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही ली, आधी से ज्यादा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडियन प्रियम्बल है दैट इज द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही वो बना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल, इंडियन प्रियम्बल। सो वेयर इन एडिक्वेट सेफगार्ड्स, जितने भी सारी सेफगार्ड्स थी, सिक्योरिटी शैल बी प्रोवाइडेड, सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। किसको? माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी दी जाएगी। बैकवर्ड एंड ट्राइबल जो एरियाज है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। डिप्रेस क्लासेस को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी सिक्योरिटी दी जाएगी। उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। ब्रिटिश के टाइम पे उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व इन्होंने की। उसके बाद 7 नंबर का जो फीचर था, वेयर बाय शैल बी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इज सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड। जमीन के ऊपर जिनके सॉवरेन लैंड जैसे कि राइट्स है, सी यानी कि पाताल में, जैसे हम बोलते हैं पाताल में नहीं बोल सकते लेकिन जमीन पे, सी पे और एयर, ठीक है, लैंड सी एंड एयर, जितने सॉवरेन राइट्स है, इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट्स वो इंडिया मेंटेन रखेगा। उसके अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, और उसको न्याय भी देगा। लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, ठीक है। सो दिस एंशिएंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। जो भी चीजें की जाएगी वो मानव कल्याण के लिए की जाएगी, फाइनली मानव का कल्याण। उसके बाद ये सारे 8 चीजें हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के देख लिए। और ये रेजोल्यूशन जो था ये अनएनिमसली अडॉप्टेड, ये असेंबली ने अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया? जनवरी 22, 1947। इसको कब प्रेजेंट कब किया गया था असेंबली में? डेट क्या थी? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 इसको एक्सेप्ट कर लिया असेंबली ने। ठीक है, दोनों डेट याद रखने हैं आपको। और उसके बाद इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे पड़ा थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। ठीक है,
or its modified version forms the preamble of the present constitution. तो ये सारी चीजें, तो प्रियम्बल जैसे मैंने आपको पहले ही इसका उल्लेख किया था प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल यहाँ पे आया, ठीक है, मेंशन किया था मैंने। तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल उसी से बना है। अब इंडिपेंडेंट एक्ट जो पास किया गया था 1947 में, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस किए गए थे, ठीक है, क्या बदलाव किए गए थे? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स की, जिन्होंने पहले बोला था कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे असेंबली को, बाद में फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया धीरे धीरे। और 28 अप्रैल 1947 को जो 6 स्टेट्स थे वो भी असेंबली के पार्ट बन गए। और आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान क्या था? पार्टीशन का प्लान था, इंडिया पाकिस्तान। ये जो माउंटबेटन का प्लान जब एक्सेप्ट किया गया जून 3 जून 1947 को, उसके बाद फिर पार्टीशन जो थी कंट्रीज की वो कर दी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। देखिए, पार्टीशन के बाद क्या हुआ, कुछ जो असेंबली कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स से पाकिस्तान में चले गए थे आफ्टर पार्टीशन। जो इंडिया में रह गए वो असेंबली का पार्ट बन गए थे, बाकी उधर चले गए थे, ठीक है। और मेंबर जो थे मुस्लिम लीग के फ्रॉम द इंडियन डोमिनेंट आल्सो एंटर द असेंबली। देखिए, जब इंडियन मुस्लिम लीग बोल रहा था कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, उन्होंने बॉयकॉट किया था, तो बाद में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। 73 मेंबर्स थे। इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट था 1947 का, उसके अकॉर्डिंग आगे बदलाव किए गए थे। पहला चेंज ये था, असेंबली जो थी वो फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दी। सॉवरेन मींस इंडिपेंडेंट, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो किसको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी, कोई भी, पाकिस्तान की, इंडिया की, म्यांमार की, ठीक है, बांग्लादेश की, एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लीज्ड। सो जो एक्ट था इंडिपेंडेंस एक्ट, उन्होंने असेंबली को पावर दे दी कि ब्रिटिशों ने जो भी कोई एक्ट पास किया होगा इंडिया में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उसको डायरेक्टली वो हटा सकती, कैंसिल कर सकती, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब है उसको रिपील करना, कैंसिल कर देना। ये पावर इस एक्ट ने दे दी। पहला तो ये इसका फीचर है। सेकेंड, पहला चेंज बोल सकता हूँ। दूसरा बदलाव ये था यहाँ पे, असेंबली आल्सो बिकेम लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? कानून बनाने वाली बॉडी। तो लेजिस्लेटिव जो बॉडी है ये असेंबली बन गई इस एक्ट के अंडर। ये सेकेंड चेंज, यानी कि कानून ये बना सकती थी। इन अदर वर्ड, सेपरेट फंक्शंस वर असाइन्ड टू द असेंबली। सेपरेट फंक्शन दिए गए, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। वो था इंडिया के लिए संविधान बनाना, ठीक है। ये इसको अलग एक काम दे दिया। और जो ऑर्डिनरी लॉज है देश के लिए, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज में सामान्य कानून बनाने देश के लिए। उस टाइम पे इतने कानून कहाँ थे? वो तो 47-48 के बाद बनाने स्टार्ट हुई थी, इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लॉज ये बनाती थी, यानी मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी। दिस टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट वेज, यानी अलग अलग दिन पे दो काम ये परफॉर्म करती थी। एक था कानून बनाने का काम एक दिन, और दूसरे दिन संविधान बनाने का काम, ऐसे दो काम करती थी। तो जब असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया, पहली इंडिया की, यानी कि हम बोल सकते फ्री इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई, डोमिनेंट लेजिस्लेचर। सो वेन एवर असेंबली, जब भी असेंबली कंडक्ट की जाती थी, यानी कि उसकी मीटिंग वगैरह होती थी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो संविधान, एक संविधान की बॉडी उसके तौर पे जब वो कंडक्ट की जाती थी, यानी कि उसकी मीटिंग होती थी असेंबली की, तब उसको चेयर कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो कानून बनाती थी तब उसको चेयर कौन करता था? जीवी मावलनकर। ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ फ्री इंडिया बने थे, पार्लियामेंट के पहले स्पीकर बने थे जीवी मावलनकर, ठीक है। इनका याद, नाम याद रखना। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जब फंक्शन वो करती थी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब चेयरमैन कौन थे? जीवी मावलनकर। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन जब करती थी, लिखने का काम, तब राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे। ऐसे दो अलग अलग डेज पे अलग अलग काम। मुस्लिम लीग मेंबर्स जो पाकिस्तान में इंक्लूड किए गए थे, विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से वो निकल गए और उन्होंने अपने सेपरेट जो पाकिस्तान बना था उसमें वो चले गए थे। मुस्लिम लीग बाद में वो निकल गए थे। और उसके साथ साथ टोटल स्ट्रेंथ जो थी अब असेंबली को कितनी रह गई? 299। 389 थी पहले, याद रखो। अभी कितना हो गया? 299 अगेंस्ट 389। सो 1946 में हुआ था। सो अंडर कैबिनेट प्लान के अंदर जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की, जैसे उसको फाइनली, पहले उसको ब्रिटिश प्रोविंसेस बोला जाता था, बाद में इंडियन प्रोविंस बोला गया, उसको रिड्यूस किया गया। 296 जो था
ब्रिटिश इंडिया का बोल रहा हूँ मैं, ब्रिटिश इंडिया का कितना स्ट्रेंथ था 296, उसको रिड्यूस करके कितना किया गया 229 किया गया, 229। एंड दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो 93 थे वो 70 हो गए। क्यों ऐसा हुआ? अलग देश बन गया ना, पाकिस्तान बन गया, तो मैंने आपको बोला था जो कुछ इधर आ गए कुछ उधर चले गए थे, जो जिस एरिया में आ रहा था उस एरिया में, ठीक है। तो स्टेट वाइज मेंबरशिप जो थी असेंबली की वो 31 दिसंबर 1947 को, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया था। तो आगे आप बोल सकते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। दूसरे फंक्शन असेंबली के क्या थे? चलिए, दो फंक्शन तो मैंने आपको बताए थे। एक सामान्य कानून तैयार करना देश के लिए, दूसरा फंक्शन था संविधान को तैयार करना। ऐसे दो फंक्शन मैंने आपको बताए। अब इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या था? इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम और कानून बनाने का काम, इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो अदर फंक्शन भी परफॉर्म करती थी। जैसे 1949 में उन्होंने इंडिया की जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसको साइन किया, रेटिफाइड किया, ठीक है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। सो एनीवन हु कैन टेल मी? ब्रिटिश ने जिन कंट्रीज को रूल किया वो एग्जैक्टली, कंट्रीज ऑन विच ब्रिटिश रूल्ड ओवर, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्रिटिशों ने राज किया उन देशों का ब्रिटिश ने क्या किया था, एक ग्रुप बना दिया कॉमनवेल्थ, यानी कि कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी, हेल्प लगेगी, जैसे हमने आपको तो फिर कर दिया, लेकिन आपको कोई भी अगर आपके देश के ऊपर कोई मानो संकट आता है तो आप हमें याद कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो कॉमनवेल्थ बनाया था कोऑपरेशन के लिए। उसके बाद तो इंडिया इसका मेंबर बन गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ का। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, जो नेशनल राष्ट्रीय ध्वज उसको अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। उसके बाद नेशनल एंथेम को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में। उसके बाद नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया जनगण मन 24, सॉरी ये जनगण मन, ये वंदे मातरम में 24 जन 1950 में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जन 1950। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। ये अकेले ऐसे राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे इंडिया के, 2 टाइम्स। उसके बाद 2 टाइम्स कोई नहीं बना। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस। टोटल सेशंस कितने हुए थे असेंबली के? 11, 11 सेशन हुए थे और 2 इयर्स। कितना टाइम लगा था बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन? 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने कम से कम 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया था। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, इनका भी स्टडी उन्होंने किया था। ऐसे 60 कंट्रीज का स्टडी करके उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज लगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ली थी वहां से। जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से ले लिए, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से ले लिया, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से ले ली। सो ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि जो हम व्यापार था, व्यापार का जो सिस्टम था वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। उसके बाद जो ड्यूटीज थी, फंडामेंटल ड्यूटीज, वी गॉट इट फ्रॉम रशिया सोर्स अकॉर्डिंग। डीपीएस भी हमने आयरलैंड से ले लिए। सो इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। 114 डेज लगा था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट को बनाने, रिटर्न ड्राफ्ट बनाने के लिए। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 64 लाख रुपीस आया था। ये उस टाइम पे था। आज अगर कंसिडर करते तो 6000 करोड़ के आसपास हो जाते। देन जनवरी 24, 1950 जो हमारी असेंबली थी उन्होंने अपना फाइनल फंक्शन कंडक्ट किया था, फाइनल सेशन। कब? डेट याद रखो, फाइनल सेशन कब था? जनवरी 24, 1950। और पहला सेशन कब कंडक्ट किया था? एनीवन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट सेशन कब कंडक्ट किया था असेंबली ने? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, करेक्ट। और लास्ट जो सेशन था उसका 24 जन 1950 का था। It however did not end and continued as the Provisional Parliament of India from January 26, 1950.
तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपनी मैंने आपको एक्सप्लेन की। डिड नॉट एंड, ये खत्म नहीं हुई थी, मिनी पार्लियामेंट का काम वो करती थी जब तक नई हमारी प्रोविजनल नई पार्लियामेंट नहीं आती, तब तक ये अपना काम पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग कर रही थी, ठीक है, पार्लियामेंट जैसा कर रही थी। तो हमारा फाइनली इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया 26 जन 1950 को, नया पार्लियामेंट भी आ गया टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52। तो जनरल इलेक्शन पहला कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये देखा अदर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें कौन से कमिटीज थी, उनका काम क्या क्या था, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम में पूछे जाते हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ तक कोई डाउट? No. ओके, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। संविधान बनाने का अलग अलग काम अलग अलग कमिटीज को दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि ये कमेटी ये काम करेगी, वो ये काम करेगी, ये कमेटी ये काम करेगी। इसके साथ साथ आउट ऑफ दिस 8 वर मेजर कमिटीज, 8 कमिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी और अदर्स वर माइनर कमिटीज। तो जो इंपॉर्टेंट 8 मेजर कमिटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो था वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। मेजर कमिटीज में पहला था यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। देखो हर एक कमेटी और किसके अंडर वो थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। यूनियन पावर्स कमेटी कौन देखता था? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी 4 नंबर की, बिकॉज इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सरदार पटेल के अंडर थी। और ये कमेटी में 5 सब कमिटीज थी, ये 5 नंबर की कमेटी। एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके 5 सब कैटेगरीज थी। पहली थी एक फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जीवी कृपलानी उसके हेड थे। माइनॉरिटीज सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी, जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे असेंबली के। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन असम, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ मुंडे नहीं, बडोलाई है, गोपीनाथ बडोलाई। उसके बाद excluded and partially excluded areas other than those in Assam sub committee A.V. Thakkar, Northwest Frontier Tribal Area sub committee। तो ऐसी इस टोटल 5 कमिटीज थी। तो 6 नंबर की थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। सो दिस वर द 8 मेजर कमिटीज। और हम डिस्कस करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। सो माइनर कमिटीज में 5 कमिटीज है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी अल्लादीन कृष्णस्वामी अय्यर। हाउस कमेटी पी पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के मुंशी। एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद। लेट्स गो अहेड नाउ 6 नंबर, सॉरी मैंने 5 ही बोला, ये बहुत सारी थी। 6 नंबर कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जी मावलनकर। एडॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यस वरदचारी, नॉट एन असेंबली। ये असेंबली के मेंबर नहीं थे लेकिन इनके अंडर कमेटी थी, वैसा चलता था। जैसे मानो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है, बट विद इन 6 मंथ्स ही हैज टू गेट थ्रू इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन, ठीक है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, पी पट्टाभी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, एस केदार, ये भी मेंबर नहीं थे। स्पेशल कमेटी ऑन एग्जामाइन टू एग्जामाइन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी, उषा नाथ सेन। एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, ये थी यस वरदचारी, ये भी मेंबर नहीं, ये तो मेंबर नहीं थे, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मैंने आपको बोला ड्राफ्टिंग कमेटी है। Let us discuss the functions of drafting committee later words. So among all the committees, most important was the drafting committee. ये 29 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश की गई थी। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, इसमें कितने मेंबर्स है उसका नाम भी याद रखना है। It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft, यानी कि संविधान का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार करने का काम कर रही थी, लिखित ड्राफ्ट,
ये वही काम ड्राफ्टिंग का था, ड्राफ्टिंग कमेटी का, इसको मसूदा समिति बोलते हैं। इसमें 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, देन एन गोपाल स्वामी अयंगर थे 2 नंबर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद असादुल्ला, माधवराव जो थे बी एल मित्तल, जिन्होंने उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था, उसकी बी एल मित्तल की जगह पे माधवराव आए थे। टी कृष्णाचारी ये डीपी खैतान की जगह पे आए थे, डीके खैतान की डेथ हो गई थी उस टाइम पे, तो ये 2 नए मेंबर आए थे, टी कृष्णाचारी एंड माधवराव। तो टोटल 7 मेंबर्स, these 7 members keep in mind। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो अलग अलग कमिटीज का जो प्रपोजल था, इन्होंने वो कंसिडर किया था। कंसिडर करने के बाद इन्होंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने फरवरी 1948 में पब्लिश किया था, याद रखना डेट, पहला ड्राफ्ट। पीपल ऑफ इंडिया, देखो जितने भी इन्होंने ड्राफ्ट प्रेजेंट किए थे उस पर डिस्कशन होता था, ठीक है। आपने अगर पार्लियामेंट की सीरीज देखी नहीं होगी तो वो देख लो, उसमें आपको दिखेगा सारी चीजें। तो उनको इनके ऊपर डिस्कस होता था, कोई अपना ओपिनियन देता था, कोई अपना अलग ओपिनियन देता था, कोई कंट्रोवर्सी में बोलते थे, कोई सपोर्ट में बोलते थे, यानी कि उनको प्रूव करना था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बना रहे हो तो वो हमारे जो डाइवर्स जो इंडिया है, ठीक है, इतना डाइवर्स, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग, ठीक है, रेस, तो इतने सारे जो लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग भाषा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सुटेबल रहेगा, इसके लिए इनके ऊपर डिस्कशन किया जाता था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को उनको प्रूव कर देना था कि ये पॉइंट ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। सो पीपल ऑफ इंडिया वर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट एन इजी। सो पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 मंथ्स टू डिस्कस द ड्राफ्ट डिस्कस करने के लिए 8 महीने दिए गए थे, और प्रपोज अमेंडमेंट, उसको अमेंडमेंट्स को प्रपोज करने के लिए। सो इन द लाइट ऑफ पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, सजेशन सारे वहां पे एक्सेप्ट किए जाते थे, कोई क्या क्रिटिसिज्म करता था, कोई क्या करता था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया सारे क्रिटिसिज्म को देखते हुए। पहले ड्राफ्ट पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे, बहुत सारे सजेशंस भी आए थे, इसलिए उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट उनको तैयार करना पड़ा, और ये तैयार हुआ था अक्टूबर 1940 में। तो आपको ये भी पूछा जाता है कितने ड्राफ्ट तैयार किए थे, फाइनल ड्राफ्ट कब आया था, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने took less than 6 months to prepare second draft। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इन्होंने 6 महीने से भी कम टाइम लगाया था। इन ऑल इट सैट ओनली फॉर 141 days। और फाइनली एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, कुछ प्रोविजन ऐसी थी जो रिलेटेड टू थी सिटीजनशिप, नागरिकत्व, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल कंटेंट इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 368, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये जो थे ये 26 नवंबर 1949 में ये आर्टिकल्स को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया इनटू फोर्स। अब ये पास 5 to 11 में क्या था, सिटीजनशिप था, 5 में 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 60 में राष्ट्रपति, 324 में इलेक्शन, 366, 367 ये आपको मैं आगे बताऊंगा। रिमेनिंग जो प्रोविजंस थी, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो 26 जनवरी 1950 को आया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये जो प्रोविजन थी टेम्पररी, ये कब ऐड की गई, 26 नवंबर 1949 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, फाइनल ड्राफ्ट बन गया था। और बाकी जो इम्पोर्टेंट जो रिमेनिंग जो मेजर प्रोविजंस थी, मेजर पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इम्प्लीमेंट किया जनवरी 1950 में। और दिस डे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है, एवरी ईयर 26 जनवरी। उसके बाद जनवरी 26 यही डेट क्यों चूज कर गई थी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूछा था, व्हाई दिस डेट वाज चूजन, ठीक है, 26 जनवरी। उसका रीजन था कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, हाँ, पूर्ण स्वराज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, उसका इस डेट को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था, इसलिए वो 2 महीना रुक गए थे। अदरवाइज वो 26 नवंबर 1949 को ही
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा रेडी था, उस टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन 2 महीना वेट किया इस हिस्टोरिकल डे का, और ये डे था 1930 में पूर्ण स्वराज दिन सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और कौन से उस टाइम पे कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन से सेशन में अनाउंस किया गया था, ये लाहौर सेशन में 1929 आईएनसी। अब मुझे बताओ, आप कल बताओ या फिर आज ही बता दो, लाहौर सेशन जब कंडक्ट किया गया था, उसमें जब पूर्ण स्वराज डे जब सेलिब्रेट किया गया था 1929 में, तब उसमें उसके प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, कौन थे? मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में, या फिर कल बता सकते हो, कल या परसों जब हमारा लेक्चर रहेगा तब। यूपीएससी एक्झामला किती मार्क्स येणार? यूपीएससी असं डिसाईड नाही करत की कोणता चॅप्टर किती मार्क्सचा आहे, ठीक आहे. असं कन्सिडर नका करू. तर तुम्ही चॅप्टर वाईज मार्क काढून ठेवणार की हा चला फंडामेंटल टाइप्स 5, चला डीपीएसपी 2 मार्क. असं करू नका. तुम्हाला पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन वाचायची. यूपीएससी काय विचारल्याचा नियम नाहीये. यूपीएससी इज नॉट युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. इट इज एन अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. सो डोंट यूपीएससी को हम जज करना पहले सीख ले, ठीक है, कि यूपीएससी क्या चीज है. यूपीएससी बहुत अलग चीज है भाई, ठीक है. तो ये आप डिसाइड मत करो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन आते हैं. आई कैन नॉट, मैं क्या, जो बैठा ना चेयरमैन, वो भी नहीं बता सकता. पेपर तो अलग फ्रेम करते हैं अलग लोग कमीशन में. तो ये पूछना ही नहीं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है. अब ये पूछो सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस सब्जेक्ट से, वो भी नहीं बता सकता मैं, सडन फिक्स नहीं बता सकता. हर हर ईयर, एवरी ईयर यूपीएससी का पैटर्न बहुत अलग होता है, ठीक है. यूपीएससी कभी कभी पॉलिटी पे 20 क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी कभी 6-7 ही क्वेश्चन पूछती है, ऐसे भी होता है. तो आप क्या ऐसे करोगे, चलो यार 20 क्वेश्चन आए थे, नेक्स्ट टाइम भी उतने आएंगे, ये मत कंसिडर करो. वो कभी इकोनॉमी का वेटेज बढ़ा देता है, वो कभी एनवायरमेंट का वेटेज बढ़ा देता है. यूपीएससी इज अनसर्टन. करेक्ट श्रुति, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट लाहौर सेशन, राइट. एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया. उसके बाद विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, विद ऑल इनएक्शन अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वर रिपील्ड, ये इनको कैंसिल किया गया था. इनके कुछ प्रोविजन ले ली थी 1935-47 की, और जो बाकी प्रोविजन थी इनकी निकाल दी थी. सो प्राइवेट काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट जो था, वो भी, उसको भी अबॉलिश कर दिया. प्राइवेट काउंसिल यानी जो इनके लिए था, ब्रिटिशों ने जो लाया था वो एक्ट. और इसी हिसाब से थोड़े हम अलग चीजों को देख लेते हैं. एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की एक्सपर्ट्स कमेटी क्या थी कांग्रेस की, ठीक है. While election to the Constituent Assembly were still in progress on July 8, 1946, जब 1946 जुलाई अगस्त में जब इलेक्शन हो रहे थे असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तब कांग्रेस पार्टी मीन्स उसको आईएनसी बोला जाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में फाउंड की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है. इन्होंने एक एक्सपर्ट्स कमेटी इन्होंने अपॉइंट की थी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मटेरियल था वो क्रिएट करने, वो तैयार करने के लिए. और इस कमेटी में कौन कौन मेंबर थे एक्सपर्ट्स कमेटी में? इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, चेयरमैन थे. एम असफ अली थे, के मुंशी थे इसमें, गोपाल स्वामी अयंगर, के डी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर थे, और के सुल्तान थे. तो दीज वर 8 मेंबर्स इन द एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस, ठीक है. इसका पर्पस क्या था एक्सपर्ट कमेटी का? टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है. देन उसके बाद लेटर ऑन द चेयरमैन्स प्रपोजल, चेयरमैन का जो प्रपोजल था, इट वाज रिजॉल्व दैट कृष्णा कृपलानी बी कोऑप्टेड एज मेंबर एंड गवर्नर ऑफ द कमिटी. तो इस कमेटी का गवर्नर जो था, सॉरी कन्वेनर और मेंबर, बाद में कृष्णा कृपलानी को बना दिया गया. कमेटी हैड 2 सिटिंग्स, जिसकी 2 बैठक हुई थी, ठीक है, 2 मीटिंग हुई थी. फर्स्ट थी न्यू दिल्ली में, जो स्टार्ट हुई थी 20 से 22 जुलाई 1946, और सेकेंड बॉम्बे में हुई थी 15 August to 17 August. So apart from a number of notes prepared by its members के द्वारा जो notes prepare की गई थी, ठीक है, the committee discussed the procedure
to be adopted by the Constituent Assembly. Question of the appointment of various committees and draft of not important. ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे लोग, ठीक है। बाकी किसने क्या क्या बोला था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या अपना ओपिनियन दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। ऑन द रोल प्लेड बाय दिस कमिटी, ये कमिटी ने जो रोल प्ले किया था, एक्सपर्ट कमिटी ने मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये बोला कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, इन्होंने ये बोला कि इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कमिटी, ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, यानी कि ये हम चीज ना डिस्कस करें, नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्रिटिसिज्म है, ये थोड़े देख लेते, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर क्रिटिसिज्म किए गए थे। क्रिटिसिज्म पहले ऐसा था, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म था। क्यों नहीं था? Critics have argued Constituent Assembly was not a representative body as its members were not directly elected. वो directly elected नहीं थे, indirectly थे ना। जो provinces थे उस टाइम पे ब्रिटिश के, वो जो provinces council में जो members थे वो इनको elect करते थे indirectly, इसलिए it is not representative body। तो ये किसको represent कर रही है? किसी को भी नहीं, लोगों को तो represent नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरा, not a sovereign body, sovereign body नहीं है। क्यों नहीं थी sovereign body? Because it was created by proposals of British government। जो कैबिनेट मिशन आया था ना इंडिया में, उसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग इसको चूज किया गया था, यानी कि उसके लिए किया गया था। उसके बाद दे सेड दैट असेंबली हेल्ड इट्स सेशंस विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से वो अपना सेशन हेल्ड करती थी, इसलिए वो सॉवरेन नहीं थी, यानी कि किसी के कंट्रोल में अंडर थी, कंट्रोल के अंडर। टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा भी किसी ने बोला था। इतना टाइम लगता है कि कभी 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो ये बहुत बड़ा टाइम ले लिया इन्होंने, ऐसा भी इस पे क्रिटिसिज्म किया गया था। उसके बाद ये कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी है, ऐसे बोला गया था, ठीक है। क्रिटिसिज्म, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन ज्यादा है यहाँ पे, ऐसे उसको बोला गया था। हिंदू डोमिनेटेड बॉडी असेंबली, ऐसा भी बोला गया था। मुस्लिम लीग ने ऐसी टिप्पणी की थी, इसलिए उनको अलग बनाना था अपना असेंबली, ठीक है। सो लॉर्ड विस्कॉन कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज, इन्होंने ऐसा बोला था। Winston Churchill commented that the Constituent Assembly represented only one major community in India, ठीक है। वन मेजर कम्युनिटी उनको बनाना था, ऐसा विंस्टन चर्चिल जो ये ब्रिटेन के पीएम थे, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने भी ऐसा किया था, कहा था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखिएगा, ये आर इम्पोर्टेंट। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल, एलिफेंट एक सिंबल के तौर पर अडॉप्ट किया गया। असेंबली का सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? वो एलिफेंट था। सर बी एन राव ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे हमारे असेंबली के, संविधान के पहले सलाहकार। एच.वी.आर. अयंगर ये सेक्रेटरी बने थे असेंबली के। एस.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन बने थे असेंबली के। प्रेम बिहारी नरेन रईजादा was the calligrapher of the Indian Constitution. The original Constitution was handwritten by him in a flowing italic style. So calligrapher ने language related था। So original version was beautified and decorated by artists from Shanti Niketan, including Nandalal Bose and V.O.R. राममनोहर सिन्हा। V.O.R. राममनोहर सिन्हा, इनको एलिमिनेट किया गया था, इन्होंने ब्यूटिफाइड किया, एलिमिनेटेड किया और एक ऑर्नामेंट की थी ओरिजिनल प्रियम्बल को, कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नरेंद्र रईजादा। कैलीग्राफ यानी कि हमारी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लिया था, स्टाइल ऑफ राइटिंग उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। सो कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य। दिस इज इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। हिंदी में किसने किया? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। और उसको एलिमिनेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिंदी टेक्स्ट। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की थी डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इन हिंदी लैंग्वेज अथॉरिटेटिव नहीं थी पहले, तो हिंदी में नहीं था वो। बाद में उसको फिर 58 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी 1987 में, उसके बाद एक अमेंडमेंट ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया 394A,
ये आर्टिकल ऐड किया और इसके अकॉर्डिंग लास्ट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, दैट इज पार्ट दिस वन 22 आप बोल सकते हैं इसको। दिस आर्टिकल कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन, 22 जो पार्ट था वो, प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी। तो ये सारी चीजें बोली गई थी। ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज रहेगा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। पार्ट 22 मॉडिफिकेशंस रहेगा विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट। कोई भी मॉडिफिकेशन आप चेंज कर सकते हो उसमें इन कन्फॉर्मिटी विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज हो, स्टाइल हो या टर्मिनोलॉजी हो, परिभाषा। adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made in it। हिंदी में बना सकते हो आप, चेंजेस मॉडिफिकेशन कर सकते हो लैंग्वेज का, स्टाइल का और टर्मिनोलॉजी का। ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। जो भी सारे पहले अमेंडमेंट की गई होगी तो उसमें उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट उसको किया जाएगा। ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट, हर एक अमेंडमेंट का हिंदी में ट्रांसलेशन जो है, ठीक है, मेड इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में भी किया गया। So translation of the constitution and its every amendment published shall be constitute to have the same meaning as the original text in English। ओरिजिनल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बनाई गई थी और इंग्लिश में जैसा उसका टेक्स्ट है वैसा सेम हिंदी में भी रहेगा उसका लैंग्वेज, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस, कोई भी अगर डिफिकल्टी मानो अगर आ जाती है तो प्रेसिडेंट जो है वो रिवाइज करेंगे हिंदी टेक्स्ट, ठीक है। ट्रांसलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स वेरी every amendment published shall be deemed to be for all purposes its authoritative text in Hindi। So whatever, so this is I have already explained to this। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रीएम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर का चैप्टर वहां मैंने बोला है, 3 नंबर का फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फीचर्स आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं प्रीएम्बल को स्टार्ट करूंगा बाद। चलेगा? सीक्वेंस वाइज जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोई डाउट पहले चैप्टर में? Any doubt in the first chapter? No, sir. Okay. सर माइनर कमिटीज में हमने वो जो पढ़ा था ना एडहॉक कमेटी, उसका मीनिंग क्या होता है एडहॉक? एडॉक का मतलब होता है टेम्पररी कमिटीज, जो टेम्पररी पर्पस के लिए अपॉइंट की जाती है। उसके बाद उसका अगर पर्पस खत्म हो गया उसको खत्म कर दिया जाता है। मानो कोई कमेटी अपॉइंट की गई किसी सर्वे करने के लिए, उसने एक बार अगर सर्वे कर दिया उसको हटाया जाएगा बाद में, उसको बोलते हैं Okay. एडॉक कमेटी। Sir, हाँ, steering committee. स्टेरिंग नहीं, स्टैंडिंग कमिटी। नाही सर, ते मेजर कमिटी मध्ये होतं ना स्टेअरिंग कमिटी. स्टेरिंग कमिटी म्हणजे याच्यामध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारे जे काम त्यांच्याकडे दिलं जातं, जसं की आता कॉन्स्टिट्यूशनचं एखादं समजा म्हणजे काही लॉ, ऑर्डिनरी लॉ बनवण्यासाठी ज्या कमिटी होत्या त्याच्या मेजर कमिटीज मध्ये त्या होत्या। त्याच्यामध्ये स्टेरिंग कमिटीचं काम होतं की ऑर्डिनरी लॉज बनवणं, ऑर्डिनरी लॉज साठी म्हणजे प्रोव्हिजन तयार करणं, हे त्यांचं काम होतं स्टेरिंग कमिटीज। तुम्हाला एक्झामला विचारणार नाही, बट जस्ट कीप इन माइंड, आतापर्यंत असा क्वेश्चन नाही आलेला एक्झाम मध्ये कमिटीज। पण मेजर कमिटी विचारतात किती होत्या, 8 होत्या, त्या कोणत्या होत्या ते विचारत नाही। ड्राफ्टिंग कमिटीवर क्वेश्चन आपको पूछा था एग्जाम में, ड्राफ्टिंग कमिटी इज इम्पोर्टेंट, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी among the major committees। Second chapter I'm looking for the PPT, I'm not getting it, just wait।
चलो वो पीपीटी अभी रेडी नहीं मेरा, तो हम क्या करते हैं, प्रीएम्बल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो प्रीएम्बल कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जस्ट फीचर्स आपको समझाने थे मुझे, जो कुछ 14-15 फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो मैं डिस्कस करके, ठीक है। वो पीपीटी मुझे मिल नहीं रहा, आई थॉट कि वो पीपीटी रेडी होगा, आई एम नॉट गेटिंग इन द सर्च। वी हैव रेडी पीपीटी फॉर preamble, so we'll discuss with that. Preamble is the fourth chapter in the Indian polity. तीसरा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सर आप फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताने वाले थे। कौन सा गवर्नमेंट? फेडरल 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 अमेरिका है, इंडिया यूनियन है। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, कंप्लीट डिवीजन, यानी सेंटर और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है, बट इंडिया इज फेडरल। इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे कि इंडिया में स्टेट्स के हाथ में पावर है, ठीक है। स्टेट अपना कानून बना सकता है, उसको ऑटोनॉमी है अपनी, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है फेडरेशन। तो अमेरिका कैसा है, कंप्लीट फेडरेशन। और फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट हैज पावर टू secede फ्रॉम द सेंटर, स्टेट से, सेंटर से वो अलग भी हो सकता है फेडरेशन में। जैसे इंडिया नहीं, इंडिया में राज्य नहीं हो सकते, इंडिया में कोई राज्य, कोई स्टेट है उनको अलग होना इंडिया से, हो सकता है, नहीं हो सकता। सो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऐसा वर्ड मेंशन नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बट डिवीजन ऑफ पावर याद रखो, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। सो प्रियम्बल हमने कौन से कंट्री से लिया है? हर एक फीचर हमने कोई ना कोई कंट्री से लिया है, बराबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वैसे प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया था, विच कंट्री? प्रियम्बल का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, पहला पार्ट प्रियम्बल का आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बताइए हमने प्रियम्बल कहाँ से, कौन से कंट्री से लिया था? फर्स्ट प्रियम्बल कौन से कंट्री में थी वर्ल्ड में? अमेरिका। अमेरिका, यानी कि हमने अमेरिका से लिया। इसका मतलब हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे हिसाब से हमने बनाया है, बट जो प्रियम्बल नाम जो होता है वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट प्रियम्बल था, उसके बाद हमने इंडिया में उसको लिया। और प्रियम्बल का सोर्स क्या है, कहाँ से बना है प्रियम्बल? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, जो मैंने अभी आपको बता दिया उसके पहले लास्ट प्रीवियस चैप्टर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने वो प्रेजेंट किया था असेंबली में। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। उसके बाद फिर सारे कंट्रीज ने उसको फॉलो किया। द टर्म प्रियम्बल जो थी वो रेफर करती है इंट्रोडक्शन और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइडेंटिटी, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, व्हाटएवर यू कैन कॉल। तो इट कंटेन्स समरी, यहाँ पे यानी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो समरी है, जो इसेंस है, वो प्रियम्बल में। जैसे एन ए पालकी वाला, इन्होंने कहा था कि, इन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा था, एक एमिनेंट जूरिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने कहा था प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन याद रखो, एग्जाम में पूछ जाएगी आप। हु कॉल्ड प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आंसर है पालकी वाला, ये नहीं पालकी वाला। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, इसके आधार पे बनाई गई है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको ड्राफ्ट किया, मूव किया असेंबली में, डेट भी मैंने आपको बताई थी। कौन सी डेट को मूव किया था उन्होंने? 13 दिसंबर 19, और उसको एक्सेप्ट कब किया था असेंबली ने? जनवरी 1937, 22 बराबर, ठीक है। सो इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, which added 3 new words: socialist, secular, integrity. So first time
प्रीएम्बल वाज फर्स्ट टाइम अमेंडेड. अमेंडेड मींस उसमें चेंजेस किए गए थे फर्स्ट टाइम. कब किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब पास की गई थी 1976 में, उस टाइम पे चेंजेस किए गए थे. उस टाइम पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी, क्या बोलते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव किए गए थे इसमें. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दिस अमेंडमेंट, ठीक है. तो विच एडेड, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये 3 वर्ड उस टाइम पे ऐड किए 1976 में प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे. पहले नहीं थे वर्ड्स, बाद में ऐड किए गए 76 में. सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ठीक है ना. मेरा क्वेश्चन आपको ये है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था तब प्रीएम्बल थी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो बाद में ऐड की गई? प्रीएम्बल थी या बाद में ऐड की गई? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल थी पहले से या बाद में ऐड की गई? सर पहले से थी. प्रीएम्बल पहले से ही थी, ठीक है. तो बाद में अगर ऐड नहीं की गई, ये 3 वर्ड बाद में ऐड की गई: सोशलिस्ट, समाजवाद, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी. ठीक है, एकता. नाउ दिस इज अ प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी, आई नहीं बोला है वहां, आई बोला होता तो फिर डिक्टेटर हो जाता कोई. सो प्रीएम्बल में इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, प्रीएम्बल, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. ये सारे वर्ड ऐड किए, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक. ये जो वर्ड है ना सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 उस टाइम पे ऐड किए गए. जस्टिस का मतलब यहाँ दिया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय. लिबर्टी, लिबर्टी कैसी होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, बंधु भाव, फ्रेटर्निटी उसमें स्प्रेड करना, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, मान सम्मान लोगों को, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बरकरार रहेगा. ठीक है. सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949, डेट कौन सा दिया है प्रीएम्बल में हमारा? 26 नवंबर दिया है 1949, ये डेट दी है. ठीक है, याद रखना. डेट 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर है 1949. डू हियर बाय अडॉप्ट, उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इनएक्ट भी किया गया था, और गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो उसको हमने इंप्लीमेंट कब किया था? 26 जनवरी को किया था 50 में. देन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के कुछ घटक हैं, फैक्टर्स है, थोड़ा इसको देख लेते हैं. प्रीएम्बल ये 4 इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स को शो कर दिए. पहला है इसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सोर्स ऑफ अथॉरिटी प्रीएम्बल का क्या है? अथॉरिटी, जो पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कहाँ से आती है? पीपल, लोगों से आती है. ये पहला फैक्टर है. दूसरा, इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा रहेगा? तो प्रीएम्बल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया टू बी अ सॉवरिन, टू बी ऑफ अ सॉवरिन सोशलिस्ट. इंडिया क्या रहेगा? एक सॉवरिन कंट्री रहेगा. सॉवरिन का मतलब किसी के अंडर में इंडिया काम नहीं करेगा, किसी का नहीं सुनेगा. इंडिया अपना अपना डिसीजन खुद लेगा. ठीक है, सोशलिस्ट है, समाजवादी रहेगा, सेक्युलर रहेगा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी. और तीसरा फैक्टर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? संविधान का ऑब्जेक्टिव रहेगा इट स्पेसिफाई जस्टिस, न्याय देना लोगों को, लिबर्टी, स्वतंत्र देना, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये हमारे संविधान का क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा. और हमारे संविधान का एडॉप्शन का डेट क्या दिया है? 26 जनवरी 1949. पॉलिटी में बहुत सारी चीजें रिपीट होती है. ठीक है, आगे भी आपको बहुत सारी चीजें रिपीट में आएगी. कीवर्ड्स कौन से प्रीएम्बल में? ये सारे कीवर्ड्स है, ये 9 वर्ड्स है. ये याद रखो. कौन सा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, कौन सा वर्ड पहले आ रहा है. अदरवाइज वो कभी कभी पूछता है प्रीएम्बल में आगे दिए हुए शब्दों की सीक्वेंस क्या है, बताइए. कहा कितने नंबर पे सोशलिस्ट है, कितने नंबर पे डेमोक्रेट है. ठीक है, तो ये कीवर्ड्स है: सॉवरिन, सोशलिस्ट,
secular, democrat, republic, justice, liberty, equality, fraternity. ठीक है, these are the 5 words. So one by one मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. सॉवरिन का मतलब क्या होता है. सॉवरिन को यहाँ उन्होंने 2 मतलब दिए हैं, 2 मीनिंग इन्होंने यहाँ पे बताए. तो 2 मीनिंग क्या है. सॉवरिन का मतलब होता है इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर इंडिया डिपेंड नहीं है और किसी के अंडर में इंडिया काम भी नहीं कर रहा है. ठीक है, किसी का इंडिया के ऊपर डोमिनेंट भी नहीं है. इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये सॉवरिन बताता है. ठीक है, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, कोई अथॉरिटी इंडिया के ऊपर नहीं है. इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, खुद के अफेयर्स कुछ यानी खुद का काम इंडिया खुद कर सकता है. इंटरनल भी कर सकता है, एक्सटर्नल भी कर सकता है, कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं. जैसे कभी कभी कश्मीर का जब इशू होता है तब कभी कभी अमेरिका बीच में बोलता है, या इंडिया चाइना के बीच कुछ होता है तो रशिया इंडिया बीच में बोलता है, सॉरी रशिया और अमेरिका. तो इंडिया क्या बोलता है, ये हमारा इंटरनल मैटर है. ठीक है, यू डोंट नीड टू इंटरफियर. बराबर ना. तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरिन है. दो इन 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया कंटिन्यूएशन ऑफ अवर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ. अब कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबरशिप कंटिन्यू किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सॉवरिटी चला गया, हम उनके अंडर में, ऐसा नहीं, वो अलग चीज है. ठीक है, कॉमनवेल्थ. और उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का जो है हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, अभी कॉमनवेल्थ का हेड कौन होता है, ब्रिटिश किंग होता है, क्राउन होता है, उनकी रानी होती है. ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडिया अभी भी स्टिल ब्रिटेन के अंडर है. दिस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन जो है ये इंडिया के सॉवरिटी पे अफेक्ट नहीं करता किसी भी मैनर में. तो इसीलिए इंडिया का जो मेंबरशिप है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूनो का भी तो इंडिया ने मेंबरशिप लिया है, WTO का भी तो इंडिया मेंबर है, वो का इंडिया मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है वो भी. इसका मतलब ये है कि हमारा सॉवरिटी वहां चला गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वो किसी पर्पज के लिए बनाई हुई संगठन है. बीइंग अ सॉवरिन स्टेट, इंडिया एक सॉवरिन स्टेट होने के कारण इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन, ये दूसरा मीनिंग है सॉवरिटी का. इंडिया सॉवरिटी का दूसरा मीनिंग ये आता है कि इंडिया सॉवरिन कंट्री होने के नाते इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अपने पार्ट में जोड़ सकता है. ठीक है, या इंडिया का कोई भी पार्ट हो इंडिया किसी को दे सकता है, किसी भी कंट्री. जैसे अभी रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री डील हुआ था, तो उसमें से बहुत सारा पार्ट ऐसा था जो इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने कुछ पार्ट इंडिया को दे दिया. तो हम किसी देश का पार्ट हम ज्वाइन भी कर सकते हैं इंडिया को, और इंडिया का पार्ट हम किसी को दे भी सकते हैं. दैट इज आवर सॉवरिटी. ठीक है. दूसरा, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट जो वर्ड था ये तो ऑलरेडी ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, लेकिन इसमें ऐड करने से पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था सोशलिस्ट वर्ड. DPSP, वेलफेयर स्टेट्स, कल्याणकारी राज तैयार करना, DPSP में प्रेजेंट था सोशलिज्म. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैड सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, और दूसरे वर्ड में बताना चाहूँ तो व्हाट वाज हियरटू इम्प्लिसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नाउ बीन मेड एक्सप्लिसिट मोरेओवर. ठीक है, सो मोरेओवर कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए. जब मैंने आपको बताया था ना कि 1946-45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद इंडिया के ऊपर तो ब्रिटेन का ही राज था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 में एंड हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद 45 के बाद दुनिया में दो पावर खड़ी हो गई, दो पावरफुल कंट्रीज खड़ी हो गई थी. वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू पावर्स. एक था सोवियत यूनियन, दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, तो सोवियत यूनियन किसको फॉलो करती थी, सोशलिज्म को, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसको फॉलो करता था, कैपिटलिज्म को. तो इंडिया ने क्या किया, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के जो फीचर्स थे दोनों को यानी कि मिक्स कर दिया इंडिया ने. यानी कि इंडिया मिक्स चलता था, भाई हम ना सोशलिज्म की साइड पे है ना हम कैपिटलिज्म की साइड पे है. अगर हम सोशलिज्म की साइड पे जाएंगे तो अमेरिका हमें बोलेगा यार ये रशिया की तरफ चला गया. अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो रशिया बोलेगा ये तो हमारे इधर नहीं है, ये तो उधर चला गया. ठीक है, मीन्स ये हमारे अगेंस्ट में. तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट किया था. कब, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इन अवधि सेशन 1955 में. ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, एंड टुक मेजर्स अकॉर्डिंगली. बराबर. सो नोटेबली इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है. हमारा चाइना जैसा कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है.
चाइना का कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, इंडिया का डेमोक्रेट सोशलिज्म है, ठीक है, also known as state socialism, which involves the nationalization of all means of production. यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट एंटिटी टू बीइंग कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट एंटिटी, उसी को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो जो भी प्राइवेट चीज है वो गवर्नमेंट में शामिल हो जाएगी, उसमें गवर्नमेंट के शेयर्स बढ़ जाएंगे, मीन्स वो गवर्नमेंट बॉडी हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, अभी गवर्नमेंट प्राइवेट बन रहा है, ठीक है, सब कुछ अभी धीरे धीरे बेचा जा रहा है, कुछ दिनों तो एग्जाम ही बंद कर देंगे ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो दूसरे वर्ड्स में अगर बोला गया, होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बोला ना, इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोशलिज्म एज वेल एज कैपिटलिज्म, जहाँ पे दोनों बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है को एग्जिस्ट होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट होते हैं, देखो हैंड इन हैंड। सो एज द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उद्देश्य क्या होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उद्देश्य होता है पॉवर्टी को खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिसीज जो इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटीज की, उसमें इक्वालिटी लाना। इंडियन सोशलिज्म जो है वो मार्क्सिज्म और गांधीइज्म दोनों का क्या है, मिक्सचर है, लेकिन हम ज्यादा कहाँ पे झुकते हैं, हम ज्यादा गांधीयन सोशलिज्म को ज्यादा हम उस तरफ ज्यादा हम झुकते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी 1991 की, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें क्या बोला गया, उसमें 3 चीजें ऐड की गई थी, एलपीजी उसमें ऐड किया गया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनको इम्प्लीमेंट किया। मीन्स अभी क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, थोड़ी लिबरल हो जाएगी, ये जो सोशलिज्म का जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। मीन्स अब इंडिया धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ चला गया 1991 के बाद। बिकॉज क्या होता था कि जब सोशलिज्म का ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर था, तब जो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इंडिया में ज्यादा तौर पर अलाउड नहीं थी, ठीक है, दैट वाज नॉट परमिटेड, इसलिए इंडिया का जो फोकस था वो डायल्यूट हो गया एंड सोशलिस्ट क्रेडेंशियल जो थे इंडियन स्टेट के, थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम होने लगे। सो सेक्युलर 3 नंबर, ये भी वर्ड ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1974 में, जो सेक्युलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। देयर कैन बी नो डाउट, सो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उनको कोई ऐसा सेक्युलरिज्म इस्टेब्लिश करना था, ठीक है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस वर्ड को ऐड ही नहीं किया था सेक्युलर को, ये तो बाद में ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की इच्छा नहीं थी कि उनको एक ऐसा स्टेट इस्टेब्लिश करना था जहाँ सेक्युलरिज्म हो। सेक्युलरिज्म का मतलब था सर्वधर्म समभाव, ठीक है, ऑल रिलीजन्स इक्वल, नो स्टेट रिलीजन, ठीक है। अकॉर्डिंगली 25 to 28 guaranteeing the fundamental rights, freedom of religion have been included in the constitution, ठीक है। लेकिन आपने देखा है कि सेक्युलरिज्म ये वर्ड आने से पहले, सेक्युलर वर्ड आने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 25, 28 इसमें ऑलरेडी फ्रीडम टू रिलीजन दिया गया है, ठीक है, रिलीजन का फ्रीडम बताया गया है यहाँ। सो बाद में तो ये वर्ड ऐड हुआ। So Indian Constitution embodies the positive concept of secularism. Indian Constitution में secularism का positive concept दिया है। उसका मतलब ये होता है कि all religions in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state. ये सारे जो religions इंडिया में वो उनको एक equal status रहेगा, कोई भी religion एक state religion नहीं बनेगा। इसका ये इसलिए ये ऐड किया गया था कि अगर कोई religion state religion बन जाता है तो बाकी के जो माइनॉरिटी रिलीजन आते हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा, ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए ये किया गया था। 4 नंबर, डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इसका मतलब क्या होता है, देखिए डेमोक्रेटिक का वर्ड होता है, मीनिंग होता है लोकशाही, जो आप सबको पता है, लेकिन दुनिया में 2 टाइप की लोकशाही है, मैं आपको आगे बताता हूँ। डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल is based on doctrine of popular sovereignty
दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है, सुप्रीम पावर होती है। लोग जो डिसाइड करेंगे वही देश का हेड बनेगा, वही देश का मुखिया बनेगा, पीएम बनेगा, पंतप्रधान बनेगा। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट होती है। इंडिया में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कौन बताएगा? इंडिया में डेमोक्रेसी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो आपको अभी ये डिफरेंस नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट नहीं है। इंडिया, अमेरिका, चाइना, चाइना में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पूरा उनका डिक्टेटरशिप कम्युनिज्म है वहाँ पे। तो ब्रिटेन, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाएगा तो उस कानून बना इम्प्लीमेंट करने के पहले वो कानून जो है उनको लोगों से पूछा जाएगा अपना ओपिनियन, उनसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल या प्लेबिसाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने अभी 5-6 साल पहले की बात है, तो उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कानून वहां पे इम्प्लीमेंट कर रही थी वो सरकार, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसको यूबीआई बोला जाता है। ये कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन उस इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्होंने लोगों की राय ली। ठीक है, कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये होता है कि स्विस गवर्नमेंट क्या करेगी, उन लोगों के अकाउंट पे हर महीना कुछ रुपए, कुछ पैसा उनको देगी। ठीक है, मीन्स जस्ट जो लोग मानो उनको अच्छा वो कमाते नहीं, उनका इनकम नहीं है या फिर गरीबी है, ऐसा है, वहाँ पे तो पॉवर्टी ही नहीं है। ठीक है, स्विट्जरलैंड है वन ऑफ द वर्ल्ड, बट वहाँ पे ऐसा कानून लाया गया था 5-6 साल पहले। तो उन लोगों ने कहा कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, वी आर एबल इनफ टू अर्न आवर सेल्फ। ठीक है, तो ऐसा कानून इससे बेटर है, हमारे अकाउंट पे डालने से बेहतर है कि आप क्या करो, इस पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन पे आप एक्सपेंड करो, इसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एक्सपेंड करो, ऐसा उन लोगों ने बोला था। तो फिर ये कानून उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया, यानी कि इन्होंने वो हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, और आज स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का टॉप 1 कंट्री है एजुकेशन और हेल्थ में। ठीक है, सो देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइस होते हैं, रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइड होता है। यानी ओपिनियन लेना लोगों का कोई चीज करने से पहले। जैसे इंडिया में जब जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये जब इंडिया को ज्वाइन नहीं थे, सारे पार्ट ज्वाइन हो गए थे, ये 3 पार्ट ज्वाइन नहीं हो रहे थे, बराबर। तो उस टाइम पे क्या किया था गवर्नमेंट ने, जूनागढ़ में कैसा था, जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था और प्रजा वहाँ की हिंदू थी। जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था, प्रजा मुस्लिम थी, वाइस वर्सा था। तो जूनागढ़ में रेफरेंडम किया गया है, जूनागढ़ में पूछा गया उन लोगों को, आपको इंडिया ज्वाइन करना है या आपको सेपरेट रहना है? तो उन्होंने बोला हमें इंडिया ज्वाइन करना है। तो फिर वो पार्ट इंडिया का बन गया और वहाँ का राजा क्या जो इम्पोर्टेंट था वो चला गया। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन दी अदर हैंड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल जो है डायरेक्ट अपना पावर एक्सरसाइज नहीं करती, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अपना पावर ये करती है। यानी हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट कर देते हैं ना, जैसे उनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जाते हैं वो लोग, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो इनको हम डायरेक्टली इलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब देखो, कोई अगर गवर्नमेंट को कोई लॉ पास करना है, गवर्नमेंट के लोगों को पूछेगी कि यार हम सिटीजनशिप एक्ट लाना चाहते हैं, उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, आपकी क्या राय है? अब हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अलग अलग जात धर्म के यहाँ पे लोग हैं, तो ये चीज नहीं पूछ सकती ना। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डिफिकल्टी आती है, इसलिए वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो फिर वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके फिर ओपिनियन चलते हैं वहाँ पे, हम वहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते डिसीजन मेकिंग में। और इस टाइप का जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री, और वर्ल्ड में दुनिया में 2 टाइप की डेमोक्रेसी है, एक पार्लियामेंट्री और दूसरी प्रेसिडेंशियल। इंडिया की कौन सी है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक ही आदमी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ दूसरे राज्य का, जब मानो अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, हेड ऑफ द स्टेट्स भी है। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी अमेरिका, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
ब्रिटेन। तो हमने पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है आपको रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बराबर। सो जो कार्यकारी मंडल है वो जो कायदे मंडल है उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। एग्जीक्यूटिव जो होता है दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। किसके लिए? पॉलिसीज और एक्शंस के लिए। जो भी पॉलिसी वगैरह तैयार करती है लेजिस्लेचर, जो भी कानून वगैरह इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है, इसलिए वो इसको रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी थोड़ा यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेमोक्रेटिक के बारे में। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि उन्होंने ये बोला कि असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 25 नवंबर 1949 में इन्होंने ऐसे कुछ चीज ऐड की थी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया 1997 में दैट की कॉन्स्टिट्यूशन envisions to establish an egalitarian social order rendering to every citizen social economic political justice, social economic political economic democracy of the republic Bharat, so Bharat Republic, so this is as usual, ठीक है। so republic वर्ड हमारा बाकी है, उसके बाद हमारे और 4 वर्ड बाकी रहेंगे, तो ये हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आधा चैप्टर जो है इसका तो हम परसों की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर दें। कोई क्वेश्चन डाउट्स होंगे पूछिए। चलो एंड करो आज का लेक्चर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। Sir, end the lecture Good from. night, sir. Sir, you are the host, so end the lecture from your side. क्या सर? You end the lecture from your side, sir. You are the host of this. मेरी साइड से एंड करूं? You can close down the lecture now. ओके।